السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اونچی آواز میں بات کریں. جی 25 سال ان میرڈ. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر کا دروازہ کھول کے باہر دیکھتی ہوں تو ایک سفید کلر کا گھوڑا چلتا جا رہا ہے اور اس گھوڑے کے اوپر جو فر ہوتی ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، جیسے بلیوں پرشین بلیوں کے اوپر ہوتی ہے نا خال اس طرح کی. تو میں کہتی ہوں کہ کس قدر خوبصورت گھوڑا ہے. اس کے لیکن جو پیر ہوتے ہیں نا وہ اونچائی میں شیخوں سے لمبے ہوتے ہیں، اونچائی والے بڑے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اس کے مالک نے اس کے اتنے لمبے پاؤں رکھے ہوئے ہیں. تو میں اس گھوڑے کو آواز دیتی ہوں پیار کے ساتھ، جیسے جانے کو بلاتے ہیں تو وہ گھوڑا میری طرف آ جاتا ہے. جیسے پاس آتا ہے میں نا ڈر کے دروازہ بند کر لیتی ہوں کہ کہیں نہ لے. تو میں اپنی والدہ کو بھائی کو آواز دیتی ہوں کہ باہر دیکھیں کتنا پیارا گھوڑا آیا ہے. تو وہ گھوڑا نا ہمارے سوراخ سے نا اندر دیکھتا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ گھوڑا جو ہے نا وہ وفادار جانور ہے نا، میں نے دروازہ بند بھی کر دیا ہے چلے جاتا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزرتا میں دیکھتی ہوں وہ گھوڑا پھر میرے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے. خواب مکمل. آپ کے یہاں پر ایک رشتہ ہے جو نظر آ رہا ہے. رشتہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ شیخ مسلم لمبی نہیں ہے. اوکے، یہاں پر آپ سے لمبے قد کا رشتہ نظر آ رہا ہے لائف پارٹنر کا، یعنی کہ وہ آپ سے لمبا ہوگا، یعنی وہ والا فرق جو عام طور پر جوڑوں میں ہوتا ہے اس سے زیادہ والا فرق نظر آ رہا ہے. اور وہ آپ سے پیار کرے گا، آپ اس سے پیار کرو گی، مانوس ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح کا رشتہ ہے. وہ سابق کردار اور اچھا انسان ہوگا، اچھا لڑکا ہوگا، وہ نظر آ رہا ہے. سمجھ لگی بات کی؟ انسان اور جانور پیار مانگتے ہیں، اپنائیت مانگتے ہیں، پھر زندگی بنتی ہے. اگر کسی کی زندگی میں پیار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دولت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مرچی دھنی دال کے ساتھ کھا کے، مسر پکا کے، ٹوٹا پکا کے، سارا کچھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پیار وہ چیز ہے جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے. اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑے جوڑے کپلز پیدا کیا، ہر چیز کو. اور اللہ نے فرمایا میں نے آدم کی اولاد کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں پیار میں، ایک دوسرے کی قربت. یہ پیار اسی سے سکون حاصل ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ سے خیر ہی مانگتے رہا کریں. اللہ محبت اور پیار اور وفا کرنے والا لائف پارٹنر دینا مجھے، یہ اللہ سے دعا کیا کریں اور یہ پڑھا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں اور میرا ایک ساتھی جب ہماری ایج شادی کو پہنچی تھی، جس وقت شادی ہونی چاہیے، اس وقت پھر ہم دونوں نے یہ بہت ہی پڑھنا شروع کر دیا. ہم دونوں نے کلیگ تھے، تو پھر ہم چھٹیاں آئے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، چھٹیوں پر آئے اور آ کر ہم دونوں کی شادیاں ہوں. یہ محض اتفاق تو نہیں ہے، کیونکہ ہم دو تھے اور دونوں اس چیز کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، کیونکہ ہم دونوں کی جو ایج ہے وہ شادیوں کی ہو گئی ہوئی تھی، اور ہم دونوں ہی چاہتے تھے کہ چھٹیوں میں جائیں، شادی کروا کے آئیں اور آ کر اپنی بیویوں کو بھی بلا لیں. اور پھر ایسا ہی ہوا تھا. تو یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ پڑھا کریں. یہ زندگی کے تجربات سے اگر میں کوئی چیز بتاتا ہوں، اگر زندگی کے تجربات سے چیز بتاتا ہوں تو اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے. ایک یعنی میں خود اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن آپ لوگ جب مجھے صاحب علم کہتے ہو تو صاحب علم انسان کی زندگی سے جو تجربات ہوتے ہیں وہ بہت بڑا معنی رکھتے ہیں، اور اس جو انہوں نے پڑھا تھا ان کا کام ہوا، تو آپ لوگ بھی پڑھو، آپ کا کام بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں اتفاقات نہیں ہوتے ہیں. اوکے، کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے، کون سے شہر سے بات کر رہی ہو؟ سے بات کر رہی ہوں. تو میرا رشتہ جہاں ہوا ہے نا، تو وہ مطلب
माशाल्लाह, 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 मुबारक हो। जी खैर हमारी और वो बहुत अच्छा है। जी सर आपने सेशन लिया था, आप थोड़ा सा याद करें। करवा थोड़े दिन मतलब 2-3 माह पहले लिया था आपसे मैंने। और ये रिश्ता उसके बाद 2 हुआ है? माह रिश्ता उसके बाद हुआ है? जी माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं ये रिश्ता होने के सेशन लेता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि लोग जल्दी मचा देते हैं और वो काम रिश्ता होना करीब हो जाता है। देखो मैं आपकी सब कुछ तबीर बयान कर रहा हूँ और वही चीज आप बोल रही हो कि वो हो गई है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो अब भी आपने ये दुआ जारी रखनी है, ठीक है? इसका बहुत ही फायदा होता है। और दूसरी बात ये है, मैंने कहा कि किसी आलम की जिंदगी के लाइफ के तजर्बात में से अगर कोई चीज मिले तो उसको पल्ले बांध लिया करो। ओके, जो आपका जिला है ना, आपका जिला शेखपुरा है या ननकाना है? जी शेखपुरा है। ओके, मेरा जो पैदाइशी जिला था वो भी शेखपुरा। और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चोरियां, डकैतियां, ये सारा कुछ और करप्शन और बहुत कुछ जो होता है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शेखपुरा में होता था जब हम छोटे थे, ठीक है? जी जी जी। और उस वक्त हम लोग जिस जगह पर रहते थे, हमारी जो जमीन थी, अपने मुरब्बे में रहते थे, बस हमारा घर था। और जब ये जो भैंसे हैं, ये जो जानवर हैं, ये जो बकरियां हैं, जो भेड़े हैं, इस तरह की जो चीजें हैं मवाशी, ये लोग चोरियां करने ट्रकों पर आते थे और लाद कर ले जाते थे। चोरियां करने वाले उस दौर में वो किसी की भैंस खोल कर ले जाते थे। ये जो गांव में रहते थे या शहर में रहते थे उनकी भी ऐसे ही होता था, ये वो दौर था। लेकिन जरा गौर करो इस बात का कि मेरे वालिद साहब ने 100 साल उम्र पाई। कितनी? माशाल्लाह 100 साल। 100 साल के बाद वो फौत हुए, अल्लाह को प्यारे हुए। और आखिरी जो रमजान था वल्लाह वो भी उन्होंने खड़े होकर तरावियां पढ़ी थी माशाल्लाह माशाल्लाह इमाम के पीछे। और मेरे वालिद की उम्र जो 100 साल थी और 100 साल वालिद जिए और उस 100 साल में कुछ वक्त इंडिया में गुजारे हिजरत से पहले और कुछ गुजरांवाला में गुजारे जहां हमारी जमीन क्वाइट कर ली गई थी, छौनी बन गई वहां, और फिर इस जगह पर आए और अपनी जमीन पर ही अपना घर बनाया। तो 100 साल में मेरे वालिद की चोरी कोई नहीं हुई थी, कोई चोरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारते थे अपने सीने पर और चारों तरफ फूंक मारते थे। मेरे वालिद साहब का ये रूटीन का हिस्सा था। वो अपने आप को, अपनी आल औलाद को, अपने माल को, अपने जानवरों को, अपनी हर चीज को आयतल कुर्सी के हसार में कर देते थे। वो देखो रसूलुल्लाह के दौर में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उसने कहा शैतान ने मुझे छोड़ दो, तीसरे दिन उसने उनका आज तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसके बदले में मुझे छोड़ दो, बहुत कीमती बात बताऊंगा। कहा बताओ। उसने कहा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, आपका मालूम मता महफूज रहेगा। वो शैतान ने बात कही थी। अल्लाह के रसूल ने जब ये जवाब सुना तो फरमाया सदाका का व हुआ कज़ूब, वो झूठा है लेकिन बात सच्ची कर गया है। शैतान की फितरत में वो झूठा है, जैसे इंसान की फितरत में सच्चाई होनी चाहिए ना। ये देखें कॉल्स नहीं आ रही। इंसान की फितरत में सच्चाई है, जिन्नात और शायातीन की फितरत में झूठ है। वो झूठ बोलते, सदाका का व हुआ कज़ूब, यानी वो झूठे हैं लेकिन बात सच्ची कर गया। अरे मैं अपने वालिद की बात आप लोगों को ये बता रहा हूं, और फिर मेरे ससुराल में एक दफा मेरे वालिद आए दूर, वो दोनों, मेरी सास भी मेरे ससुर भी, कोई अम्मी के रिश्तेदार, कोई अब्बू के रिश्तेदार,
बड़ा फ्रैंकली रिश्ता था ये, और छत पर सोए थे। तो उन्होंने, मेरी सास जो मेरी बीवी की वालिदा हैं, उन्होंने एक दिन मुझे बताया, आए थे और वो छत पर सोए और छत पर लेटे हुए आयतल कुर्सी पढ़ी आवाज के साथ, और उसके बाद मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते हैं कि इस तरफ से हमारा गांव, हमारा डेरा किस तरफ है? उन्होंने कहा इस सिमत की तरफ है। तो उन्होंने फूंक मार दी जोर से, आयतल कुर्सी पड़ी थी और फूंक मार दी। उन्होंने पूछा, वो मामा जी कहते थे, मामा जी ये फूंक होते पहुंचेगी? क्या अल्लाह ने हुक्म देना। और 100 साल उम्र पाई, कोई चीज नहीं मारी चोरी हुई, और कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसकी चोरी नहीं हुई थी। भूख का दौर था वो दौर। 100 साल जिए, चोरी क्यों? आयतल कुर्सी का हसार करते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा करो। जो इंसान हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ रूह का निकलना है बस, यानी मौत का आना है, मौत आई और जन्नत, बस इतना बड़ा फजल है। अरे अपने आप पर, अपने इस प्यारे जो आपका हस्बैंड बनने वाला है, जिसको सफेद घोड़े की शक्ल, उसके लिए भी इसार किया करो आयतल कुर्सी का। अपने मालो मता, अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी हर चीज के लिए इस वक्त अगर आप हिसाब नहीं करोगे तो कब आएगा उसका टाइम? ये भी पहले ख्वाब में आया, गुजरांवाला साहब पूछी गई, मैंने कहा तुम्हारा शहर आजमाइश में नजर आ रहा है मुझे, बिलियन हो रही थी। तो इसलिए आयतल कुर्सी का हिसार जरूर किया करें, इसको मत छोड़े जी, सलामत रहें। और ये मेरा आप ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है, इतना किताब वीडियो से दोस्तों को सबको बेचना, ताकि सब लोग इससे रहनुमाई हासिल करें, और अपने अपने व्हाट्सएप पर इसी वक्त इस लाइव ट्रांसमिशन का जिसका मैं अभी लगाने लगा हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पर अपना, तो ये लिंक भेजो दूसरों को, ताकि दूसरे लोग, उनकी जिंदगी में खैर आ सके, बहलाई आ सके उनकी जिंदगी में। सबको बेचा करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी किया करें। ये दावत दीन है, और क्या है? मैं आपका जब से बात कर रहा हूँ क्या सिखा रहा हूँ? दीन सिखा रहा हूँ ना। आपकी तबीर से दीन सिखाया जाता है, तबीर के साथ साथ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो 2 कैदियों की ख्वाब सुनी थी, तो उस ख्वाब को दावत दीन का जरिया बनाया था, और वहां से टाइम लिया था, और उनसे कहा था मैं अभी बताऊंगा आपको ख्वाब की तबीर, पहले आप लोगों का खाना आ जाए, खाना खा लो, उसके बाद मैं आप लोगों को ख्वाब की तबीर बयान करूंगा। उनको पहले इस चीज पर एग्री किया, ये कुरान में लिखा हुआ है सूरत यूसुफ में। और फिर वो टाइम गेन करके उनसे कहा, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ, वो जो जगह जगह तुमने रब बनाए हुए हैं, उस दौर में जो रब थे पत्थरों की पूजा करते थे, आज के हमें मजारों को, बुतों को, पीरों, जाहिलों को, बहुत सारे ऐसे लोग, कोई पीर आलिम भी हैं, मैं सारे पीरों को जाहिल नहीं कह रहा, कोई ऐसे गंदे मलंग बैठे हुए हैं, तो लोग उनसे जाके पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। तो ये आजकल का ये शिरक है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो रब जो क्रिएटर है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है, वो बेहतर है या ये जो तुमने अपने हाथों से तराशे हुए, आंखों से देखे हुए, बनाए हुए, ये रब बेहतर है या वो अल्लाह बेहतर है? जो अल्लाह है, जो मबूद पर हक है, यकता है, उनको ये तौहीद का दर्स दिया था। अपना अपना हिस्सा डाला करो दीन में, आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि आप इस बात को जो मैं दे रहा होता हूँ, इसको लोगों तक पहुंचाया करें, खैर होगी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 100 साल जिंदगी पाई, कोई चोरी नहीं हुई, कोई डकैती नहीं हुई, किसी ने कोई लूटा नहीं। ये इत्तेफाक थोड़ा ही है, ये आयतल कुर्सी पढ़ने के करिश्मे हैं। खुद को, अपनी आल औलाद को, सबको आयतल कुर्सी के हसार में करते थे, फिर भूख मारते थे।